চানমাৰীত 14 সংখ্যক ইষ্ট হিমালয়ান ট্ৰেড ফেয়াৰ আৰু প্ৰথম ইষ্ট হিমালয়ান এগ্ৰি এক্সপ' 2025 উদ্বোধন। গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে 23 জানুৱাৰীত 14 সংখ্যা ইষ্ট হিমালয়ান ট্ৰেড ফেয়াৰ আৰু প্ৰথম ইষ্ট হিমালয়ান এগ্ৰি এক্সপ' 2025 উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ITPOৰ অফিচাৰ অন স্পেচিয়েল ডিউটি লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হৰ্ষ কণ্ডিল্য আৰু অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ প্ৰধান বাণিজ্য প্ৰসাৰ সংস্থা ইণ্ডিয়া ট্ৰেড প্ৰমোশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে 14 সংখ্যক ইষ্ট হিমালয়ান ট্ৰেড ফেয়াৰ আৰু প্ৰথম ইষ্ট হিমালয়ান এগ্ৰি এক্সপ' 2025। এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো 23 পৰা 29 জানুৱাৰীলৈ গুৱাহাটীৰ চানমাৰীস্থিত অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। ITPOৰ অফিচাৰ অন স্পেচিয়েল ডিউটি লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল হৰ্ষ কণ্ডিলই কয় যে এই 7-দিনীয়া অনুষ্ঠানটোৱে স্থানীয় নাগৰিকসকলৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ ক্ৰয়ৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব আৰু বিক্ৰেতাসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰাৰ এক আদৰ্শ মঞ্চ সৃষ্টি কৰিব। তেওঁ কয়, এই মেলাখন অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ বাবে এক সোণালী সুযোগ হিচাপেও পৰিগণিত হ'ব, য'ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন আৰু বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও স্থানীয় ক্ৰেতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ লগতে চুবুৰীয়া দেশৰ সৈতে ব্যৱসায়িক নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাও সম্ভৱ হ'ব। এই মেলাৰ বিশেষত্ব হৈছে যে MSM গোট, আত্মসহায়ক গোট, মহিলা উদ্যোগী আৰু ষ্টাৰ্টআপসমূহে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰী আৰু কাহিনীবোৰ প্ৰকাশ কৰিব, তেওঁলোকৰ প্ৰদেশৰ ঐতিহ্য উপস্থাপন কৰিব আৰু নতুন প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ কৰিব। এই মেলাখনৰ বিষয়বস্তু হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত। অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ সহযোগত আয়োজিত এই মেলাত বিভিন্ন ধৰণৰ উপভোক্তা সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। ইয়াত বৈদ্যুতিক সঁজুলি, ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী, পাকঘৰৰ সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী, প্ৰসাধন সামগ্ৰী আৰু সৌন্দৰ্য সামগ্ৰী, টেক্সটাইল আৰু কাপোৰ, চামৰাৰ সামগ্ৰী, হস্তশিল্প আচবাব, কাৰ্পেট, পাটৰ সামগ্ৰী, কিতাপ, ষ্টেচনাৰী আৰু কৰ্পৰেট উপহাৰ আদি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। এই প্ৰদৰ্শনীত আত্মসহায়ক গোটৰ সামগ্ৰীও প্ৰদৰ্শিত হ'ব। तो जैसा कि आपने पूछा अभी मुझसे और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन भारत मंडपम एक ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अंतर्गत, और इसी तरह के फेयर्स हम पैन इंडिया करते हैं। ये 14वां एडिशन है एनुअल ईस्ट हिमालयन ट्रेड फेयर का, और साथ में हम फर्स्ट ईस्ट हिमालयन एग्री एक्सपो कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो बेसिक इकॉनमी है वो एक एग्रेरियन इकॉनमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है। तो हमने इस ईस्ट हिमालयन ट्रेड फेयर का दायरा थोड़ा बड़ा किया और हमने सोचा कि कैसे हम इसमें एग्रीकल्चर और एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, और साथ में चूँकि नॉर्थ ईस्ट में और ख़ासकर असम में टी प्लांटेशन काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, तो हम धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी पैन इंडिया यूज़ हो रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारा मकसद है कि हम धीरे धीरे करके उनको यहाँ पर लेकर आएँ, यहाँ के लोगों को उस टेक्नोलॉजी की वाकफियत हो और धीरे धीरे मैन पावर सेविंग, कॉस्ट सेविंग की तरफ एग्रीकल्चर को हम बढ़ा सकें, उनका इफ़ेक्टिवनेस बढ़ा सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो इन सब के साथ हम इस बार भी लगातार तीसरी बार गुवाहाटी में कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अभी जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक, जब तक हम 100 साल आज़ादी के होंगे, विकसित भारत का जो एक सपना देखा है, वो उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट पिलर है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। So we are promoting Make in India things, and slowly we are wanting to give the MSMEs of the Northeast a platform from where they can get their products, they can show their talent, they can showcase their skills, and the rest of the India gets to know about the untapped economic activities which can be performed in the Northeast. Okay. तो आज हमने 23 तारीख को ये फेयर स्टार्ट किया है। 23 से 29 जनवरी ये चांदमारी गुवाहाटी में हो रहा है।
और आज हमारा अहोभाग्य रहा कि यहाँ की माननीय सांसद श्रीमती बिजोली कलिता मेधी मैडम हमारी आज की चीफ़ गेस्ट रहीं और उन्होंने बहुत समय निकाला हमारे लिए, एक एक एग्ज़िबिटर के पास गई और उनसे इंटरेक्ट किया और मैम का 2-2.5 घंटे का पूरा प्रोग्राम हुआ यहाँ पे और काफ़ी उन्होंने सबको, पूरे एग्ज़िबिटर्स को यहाँ पे इससे ऐसी चीज़ों से, जब इस तरह के माननीय VIPs हमारे फेयर में आते हैं और हमारे फेयर का शो बढ़ाते हैं और एक एक स्टॉल पे जाके उन्होंने खासकर जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो महिला सशक्तिकरण का ड्राइव पूरी देश में चल रहा है, उन्होंने पूरे उसके साथ हर एक उस स्टॉल पे गई, इंटरेक्ट किया, पता किया, पूछा डिटेल में और काफ़ी उनका हौसला बढ़ाया। तो मैं उनका काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में मैं गुवाहाटी की जनता, जो आपने पिछले कई एडिशंस में इस ईस्ट हिमालयन ट्रेड फेयर को जो अभूतपूर्व प्यार दिया है, जो अपनापन दिया है, उसी वजह से इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन हर बार गुवाहाटी में इस फेयर को करके और लोकल असम गवर्नमेंट की मदद जो हमें मिली है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे आने वाले वर्षों में इस फेयर का दायरा और बढ़ाएंगे। इस बार भी हमने फेयर में बहुत सारी नई चीज़ें की हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हम पहली बार ईस्ट हिमालयन एग्री एक्सपो कर रहे हैं और हम इस उम्मीद के साथ पहली कदम पे निकले हैं कि धीरे धीरे हमारे कदम जो हैं वो लंबे लंबे पगों में बदल जाएंगे और इन द कमिंग 5-7 years which is the rising Indian decade, the entire world is looking at India. We have now we are crossing almost $4 trillion GDP. We have recently crossed France and the United Kingdom. 7वें पायदान से हम 5वें पायदान पे आ गए हैं और आने वाले बस 2 से 3 वर्षों में हम फ्रांस और जर्मनी से आगे हो जाएंगे और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के पीछे। तो ये एक समय है, मैं आपके चैनल के माध्यम से द यूथ एंटरप्रेन्योर्स एंड द विमेन एंटरप्रेन्योर्स आप लोगों से ये विनती करूँगा कि इस भारत के स्वर्णिम काल में आप पूरी लगन, पूरी मेहनत से लगें। जो भी आपकी बिजनेस आइडियाज़ हैं, you have to have the passion in the heart and the fire in the belly, and you will succeed and you will contribute a lot in the growth of this nation. आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बस अपने लिए सक्सेसफुल नहीं होता है, he gets a lot of employment with him or her, and that is the contribution to the society. So मैं इस ईस्ट हिमालयन ट्रेड फेयर जो इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, उसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की जो यूथ है, आज की जो हमारे पूरे भारत का जो हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है, उसमें तकरीबन 30 साल से कम उम्र की जनसंख्या तकरीबन 65 करोड़ हो गए हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ डेमोग्राफिक एडवांटेज इन द कमिंग ईयर्स। ये हमारी ताकत है। जो एडवांटेज चाइना के पास तकरीबन 15, 17, 20 साल पहले थी, वो भारत की ताकत अभी होने वाली है। तो आप यंग पीपल, यू हैव गॉट यंग ब्राइट आइडियाज़, यू गॉट आपके पास हौसला है, आपके पास वो जुनून है, आपके पास वो मेहनत करने की लगन है। तो अगर आप अपने आइडियाज़ को ऐसे ही, ये हमारा प्लेटफॉर्म, इन टाइप के प्लेटफॉर्म हम पैन इंडिया देते हैं, तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स में आगे आने वाले सालों में मैं चाहूँगा कि वी हैव मोर यंग पार्टिसिपेंट हु कैन कम हियर एंड शोकेस देयर टैलेंट